The topic is environment and health. In environment and health, we have already studied about the water pollution and sources of water and sources of pollution and prevention of pollution. By extending this topic, today we are going to study about water pollution law. Water pollution law says that Water Prevention and Control of Pollution Act was passed in 1974. This act, Water Prevention and Control, this act was passed in 1974 and it provides legal direct action and permits the constitution of. बोले तो कुछ लोगों को थोड़ा बहुत राइट्स दिया गया है. Those are Central Water Board, State Water Boards, Joint Water Board. So these boards have powers to control water pollution. बोले तो कहीं देखो अभी गंगा ऐसा रिवर्स जो है उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती रहती है. So they have the power to control that water pollution and for water treatment also. So next we are coming to the point of hardness of water. What is the definition of hardness of water? The soap destroying power of water. The soap destroying power of water बोले तो जब कभी वाटर हार्डनेस ज्यादा है तो क्या होता है ना, आप घर में भी चेक कर सकते हैं. जो वाटर थोड़ा हार्डनेस है, हम ऐसा सोप रख के उसको पानी डालेंगे तो वो पूरा ब्रेक हो जाती है सोप का. तो सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर. वाटर इज हार्ड इफ सोप डज नॉट लैदर इजिली. बट तो क्या है ये, उसको फोम्स जो आके अच्छी तरह से जो प्लास्टिसिटी जो रहती है वो ब्रेक हो जाती है. दैट इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर. हम सोप को अप्लाई करके वाटर को हम चेक कर सकते हैं. ये हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है. ये आपको शायद एक्सपीरियंस होगा रियल लाइफ में. नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस. कुछ हार्डनेस टेम्पररी भी रहता है, कुछ हार्डनेस जो है परमानेंट भी रहता है. टेम्पररी हार्डनेस में क्या रहता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. So these are present in temporary hardness, but this can be removed by boiling, addition of lime and sodium carbonate and by permuted process. बोले तो ये भी एक process है, ठीक है. By these methods you can remove this hardness in temporary hardness. ठीक है. Temporary hardness में actually the presence of carbonate and calcium and magnesium वो रहते हैं उसमें, and this can be easily removed by adding the lime, sodium bicarbonate and permuted process. ये 3 आइटम से हम क्या कर सकते हैं, ये टेम्पररी हार्डनेस जो है हम रिमूव कर सकते हैं. उसके बाद हम वो वाटर को हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस कब रहता है? द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, chlorides and nitrates of calcium and magnesium. So these are the elements which will be present in the permanent hardness of water. And this is also called as non-carbonate hardness. This is also called as non-carbonate hardness. And also this can be removed by addition of sodium carbonate and by base exchange process. By these processes we can remove this permanent hardness also. ठीक है बेटा. So these are the types of hardness. आपको ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस रहेगा कि वाटर कितना हार्ड है. हम घर में भी चेक करते हैं. जो हार्ड वाटर से हम कभी कभी नहाने के लिए भी डरते कि क्योंकि ना वो सोप पूरा ब्रेक हो जाती है. ठीक है. सो डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस हार्ड वाटर. What are the disadvantages? With this hard water, if it consumes more soaps and detergents and produces furring and scaling of boilers and lids and produces economical losses in industrial process. बोल तो ये बहुत ही
सोप डिटर्जेंट्स इसको कंज्यूम होते हैं इसमें। अगर ब्रेक हो रहा है, जो अच्छे पानी जो होती है, जो म्युनिसिपल वाटर जो आता है, वो थोड़ा हार्डनेस कम रहता है उसमें। उसमें अगर हम थोड़ा साबुन डाल के, थोड़ा सोप डाल के, डिटर्जेंट से हम कपड़े भी धोएंगे और बर्तन भी साफ करेंगे, थोड़ा थोड़ा से ही हमको बहुत ज्यादा वो क्या फोम्स अच्छी तरह से आ जाते हैं। मगर जो हार्डनेस जो रहता है ज्यादा, वो हार्ड वाटर से हम कितना भी सोप डाले, कितना भी डिटर्जेंट डाले, वो जल्दी से ब्रेक हो जाती है। So it produces furring and scaling of boilers and lids. So it is economical losses in industrial process हो जाती है. So this is one our a disadvantage. Next, in cooking, it produces a change in color and appearance of food. And also sometimes you can see that अगर हम ये हार्ड वाटर से हम कुछ तभी दाल या हम उबालने के लिए रख देंगे, वो जल्दी से पकता नहीं बोलते हैं हार्ड वाटर से। जो सॉफ्ट वाटर से जब 5 मिनट्स में कुकिंग हो जाती है, मगर हार्ड वाटर से 10 मिनट तक भी रखेंगे, वो वैसे ही रह जाता है, ऐसा बोलते हैं थोड़ा बहुत। ये अपना डेली लाइफ का एक्सपीरियंस के साथ हमको समझ में आ जाते हैं। एंड ऑल्सो इट कैन चेंज ए कलर एंड अपीयरेंस ऑफ फूड विद दिस hard water. So it is very a big disadvantage. And also it shortens the life of water pipes. ये हार्डनेस रहने से वो पाइप्स में जो आता है ना, उसमें बहुत ज्यादा साल जैसा बनी रहती है, वो पाइप जल्दी खराब हो जाती रहती है ये हार्ड वाटर से। ठीक है बेटा। सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर। Next, purification of water, either large scale or in a small scale. हम प्यूरिफाई करके हम यूज करना है उस वाटर को। लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं कि इसमें 5 स्टेप्स के साथ प्यूरिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन फेसेस एंड ऑल्सो फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्टैक्ट। सो वाटर जो है, हमको हम जो प्यूरिफाई कर रहे हैं, वहां पर पहला ये करना है कि ह्यूमन फीसेस जो स्टूल्स रहते हैं एंड आल्सो फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल कांटेक्ट, क्योंकि ना वो जाके कपड़े धोएंगे, नहीं तो एनिमल को धोएंगे, नहीं तो हम ही जाके पानी नहाना, ये सारे बहुत सारे पानी को खराब कर देते हैं। ठीक है। सो यू शुड हाव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज स्टोरेज। The storage is done in natural and also artificial reservoir for 10 to 14 days. ठीक है। ये नेचुरल आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स में हम जो है 10 to 14 डेज तक हम इसको स्टोर करके हम रख सकते हैं। This stored water is up to 90% is purified due to physical, chemical and biological changes. ठीक है। यहाँ पर 90% प्यूरिफाइंग हो जाता है। स्टोरेजेस बियॉन्ड 2 वीक्स इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। ये 2 वीक्स तक जो स्टोरेज करके रखता है, इट कैन बी अप टू 90% प्यूरिफिकेशन अकर ड्यू टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस से हम 90% प्यूरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट कैन बी स्टोर्ड ओवर 15 डेज। ठीक है। बट आफ्टर 15 डेज इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द जनरल यूसेज because it may be there may be growth of algae. ठीक है। अगर ज्यादा 15 डेज से ज्यादा हम स्टोर करके रखेंगे, इट मे लीड्स टू ग्रोथ ऑफ algae. algae बोलते आपको पता होगा, जो ग्रीन कलर का जो पानी अगर ज्यादा दिन रखेंगे तो ग्रीन कलर का जो हो जाते हैं ना बेटा नीचे से, वो दैट इज कॉल्ड algae. ठीक है। नेक्स्ट इज coagulation. Coagulation can be done with alum at a dose of 4 to 500 mg per liter, ऐसा डाल के हम ये coagulation कर सकते हैं। And also sedimentation is also we can do this sedimentation done in a tank where water is detained for 2 to 6 hours. 2 to 6 hours जो वहां पर रख सकते हैं। Now the flocculent precipitate along with impurities and bacteria settle down in the tank. बोलते क्या हो जाते हैं ना, सेडिमेंटेशन बोलते क्या है, जो भी अंदर का जो आइटम्स है that can be settled down, whatever it may be the tank or whatever it may be the glass or utensil, whatever it may be, that whatever it may be, ये undissolved particles जो भी है
that will be settled in the settled down in the container. So in the sedimentation, now the flocculant precipitate along with impurities. जो flocculant बोले तो जो भी lumps जो है, precipitated lumps and impurities and bacteria that can be settled down in the tank, that is called sedimentation. ठीक है? Coagulation is nothing but वितालक at a dose of 4 to 500 mg per liter जैसा डाल के हम coagulate कर देते हैं. ठीक है? So this is about coagulation and sedimentation. By this also we can purify water and we can immediately use that purified water. Next is filtration. Filtration, slow and filter and rapid sand filter. So these are the two types of filters. Okay? So two types of filtration process. This can remove 98 to 90% of bacteria and other impurities. By these two methods of filtration, we can remove 98 to 99% of bacteria and other impurities from the water. Next is disinfection. It involves chlorination. Disinfection बोलते क्या है? हम जो है जो बाहर का आइटम्स डिसइंफेक्शन हम अंदर नहीं कर सकते हैं. हम इससे पहले हम आपको लैब में बताए थे कि आयोडीन पाउडर सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है? दिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्लेटफॉर्म्स एंड यूटेंसिल्स, नॉट फॉर अस. ठीक है? दैट इज कॉल्ड, बोले तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करवा सकते, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता है बाहर. ठीक है? सो इन दिस द प्रोसेस इज क्लोरिनेशन. डिसइंफेक्शन में हम ये क्लोरिनेशन एक मेथड यूज करते हैं. उसमें क्या करते हैं? एडिशन ऑफ क्लोरीन टू फिल्टर्ड वाटर फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन. एक बार हम फिल्टर करने के बाद उसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं. यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया है, उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद उसमें क्लोरीन ऐड करके we will move for the further purification. This is the cheapest and most reliable method for the disinfection process. Please remember these methods. ठीक है? अगर हम लार्ज स्केल में प्यूरिफिकेशन करना है तो लार्ज स्केल में जो है रिवर्स वहां से हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो पहले वहां पर क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि किसी ह्यूमन एंड एनिमल कांटेक्ट से उसको बचाना है. उसके बाद उसको रिजर्वायर में हमको स्टोर करना है. उसके बाद उसमें जो है कोगुलेशन प्रोसेस एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, उसको प्यूरिफाई करना है. वो जो प्यूरिफाई करने के बाद उसको फिल्ट्रेशन करना है. फिल्ट्रेशन के बाद उसमें डिसइंफेक्शन के मेथड में उसमें क्लोरीन ऐड करके उसको फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज कर देते. ठीक है बेटा? प्लीज ये एक प्रोसेस है, देखो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. आपको ये कंटिन्यूस प्रोसेस जैसा आपको याद रखेंगे तो अच्छी तरह से याद रहेगा. ऐसा बट्टी नहीं मारना, प्रोडक्शन, स्टोरेज, कोगुलेशन, वैसा नहीं. पहले हम लार्ज स्केल में हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं वाटर को. लार्ज स्केल बोले तो हमको रेन सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से है? रेन, लेक्स, पॉन्ड्स हम बताए थे ना, वहीं से तो करते हैं प्यूरिफिकेशन. स्मॉल स्केल बोले तो शायद इंडस्ट्री लेवल, नहीं तो टैंक लेवल उसमें होती है. ठीक है? लार्ज स्केल में हमको प्यूरिफिकेशन करना है तो वहां पर पहले उसको प्रोटेक्ट करना है. प्रोटेक्ट करके उसको अच्छी तरह से स्टोर करना है. स्टोर करके कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन मेथड से उसको थोड़ा बहुत प्यूरिफाई करना है. उसके बाद उसको फिल्टर करना है. फिल्टर करके उसको डिसइंफेक्शन मेथड में हमको उसको उसमें क्लोरीन ऐड करके क्लोरिनेशन मेथड में चले जाना है. ठीक है बेटा? हम सोच रहे कि आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज रिमेंबर इट and think it how this process is going on. Step by step you have to understand. Next, what is the, अगर हम यहाँ तक आ गया है तो ये क्लोरिनेशन के बारे में थोड़े अच्छे तरह से और थोड़ा पढ़ेंगे. उसमें what is the advantages of this chlorination? So what is the advantages of this chlorination? It kills pathogenic bacteria and controls algae and similar organisms. अगर हम ये प्रोटेक्ट कर दिए हैं, स्टोर कर दिए हैं, कोगुलेशन मेथड में थोड़ा बहुत हम निकाल दिए हैं, फिल्ट्रेशन भी करे हैं, मगर क्लोरीन ऐड करने के बाद ये और कुछ ज्यादा हमको बेनिफिट क्या है उसमें? इट कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया. अगर फिल्टर होने के बाद भी कुछ तो भी पैथोजेनिक बोले तो बैड बैक्टीरिया कुछ तो भी है तो उसको किल करेगा. एंड आल्सो कंट्रोल्स algae and similar organisms. बोल तो इसमें जो है जो
जो हम वाटर लार्ज स्केल से लेकर आते हैं, अगर वो उसमें फिर से आलगे कुछ रहेंगे तो उसको कंट्रोल करेगा, डेवलप ना होने से कंट्रोल करेंगे, और जो आलगे जैसा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको भी कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इज इट ऑक्सीडाइजेस आयरन, it oxidizes iron, manganese and H2S. Also it destroys taste and odor producing constituents। बोलते जो भी इसमें टेस्ट ऑर्डर जो प्रोड्यूसिंग कॉन्स्टेंट्स जो भी है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। बोले तो ये कलर, टेस्ट, अपीयरेंस जो भी है, जो बैड कॉन्स्टेंट्स इसमें जो प्रेजेंट है उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड आल्सो इट ऑक्सीडाइजेस आयरन, मैंगनीज एंड हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा ये तीन को भी ये अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज करके उसको भी उतना उसको डीएक्टिवेट करके रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इट शॉर्टन्स द लाइफ ऑफ वाटर पाइप्स। ये वाटर पाइप्स का लाइफ जो उसको शॉर्टन्स करेंगे। ये तो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज में कैसे दिया है? एडवांटेजेस ऑफ क्लोरिनेशन। ये तो यहाँ पर हम ए में लिखे थे, इट एड्स कोआगुलेशन। इट एड्स कोआगुलेशन बेटा, शॉर्टन्स द पाइप नहीं, ये दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट हो गया था। इट एड्स कोआगुलेशन बोल तो कोआगुलेशन को ये अच्छी तरह से देखो, ये जो कोआगुलेशन जो है उसको करने में ये हेल्प करेगा क्लोरिनेशन। ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर एडवांटेजेस ऑफ क्लोरिनेशन। नेक्स्ट इज mechanism, how the chlorination will act in a water when you add into the filtered water। हम क्लोरीन कहाँ ऐड कर रहे हैं? फिल्टर्ड वाटर में ऐड कर रहा है। तो इसका मैकेनिज्म एक्चुअली उस पे अंदर क्या हो रहा है? when chlorine is added to water, when chlorine is added to water, hydrochloric and hypochlorous acids are formed। this hydrochloric acid is neutralized by the alkalinity of water. Hypochlorous acid is ionizes to form hydrogen ion and hypochlorite। So this is the mechanism of action. Please learn it and remember it. Okay. So next is what are the actual principles for this chlorination? What are the principle of this chlorination? It can, here you can see the clearance of turbidity। कुछ तो भी turbidity हमारे वाटर में है, it will be clear the turbidity with this क्लोरिनेशन। ठीक है बेटा। हमको टर्बिडिटी बोले तो क्या है? वाटर क्लियर नहीं रहता है, कभी कभी वाटर पकड़ के रखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत व्हाइटिश दिखता है, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसमें ये टर्बिडिटी को वो मेंटेन करेंगे, टर्बिडिटी वो क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा। क्लोरीन डिमांड, amount of chlorine needed to destroy bacteria and to oxidize organic and ammonical substances। so ये हम क्लोरीन डिमांड बोलते तो हमको कितना क्लोरीन चाहिए, वो कितना चाहिए? it need to destroy bacteria। how much? it need to destroy all the bacteria which present in our filtered water and to oxidize organic and ammonical substances। so this much is the quantity we need for this process। next is break point। what is the break point in this chlorination? it is the point at which chlorine demand is met। बोलो तो हमारे पास ये जो ब्रेक पॉइंट जो है वो क्या है? क्लोरीन डिमांड जो एक्शन कंप्लीट होता है दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक पॉइंट। बोलो तो हमको इतना क्वांटिटी में क्लोरीन चाहिए कि हमारा वाटर को अच्छी तरह से प्यूरिफाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेसिडुअल क्लोरीन। सो दिस रेसिडुअल बोलते हैं, आपको समझ में आया होगा कि कुछ क्लोरीन बच गया है। free chlorine begins to appear if chlorine is added beyond the break point। बोलो तो हमको ब्रेक पॉइंट क्या है?
देखो बेटा हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए बैठ गए, तो हमारा खाना कब तक होता है, हमारा पेट भरे तक, ठीक है। तो पेट भरना क्या है, क्लोरीन डिमांड, कितना क्वांटिटी ऑफ खाना हमको खाना है, दैट इज द फूड डिमांड, दैट इज द फूड डिमांड, हमारा पेट भरे तक। यहाँ पर क्लोरीन डिमांड क्या है कि वहां पर कुछ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, कुछ एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करना है, दैट वन इज द क्लोरीन डिमांड। व्हाट इज द ब्रेक पॉइंट, द ब्रेक पॉइंट वेयर वी रीच दिस वन, हमारा पेट भर गया, दैट इज द ब्रेक पॉइंट। अब रेसिडुअल क्लोरीन बोलते क्या है, हम और नहीं खा सकते, बोले तो बचा हुआ खाना, बचा हुआ हमारे प्लेट में, हमारा पेट भर गया फिर भी बच गया खाना, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल क्लोरीन। फ्री क्लोरीन बिगिंस टू अपीयर इफ क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट तक क्लोरीन का रेसिडुअल हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि ना वो अपने काम करते रहेगा, ठीक है। एक बार उसका काम करना खत्म हो गया तो फिर उसका थोड़ा जो क्लोरीन जो हम ज्यादा ऐड कर रहे हैं वो दिखने लगेंगे, ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड residual of chlorine. Next is contact period. Minimum residual concentration of chlorine is 0.5 mg per liter for 1 hour. This is the only contact period. क्योंकि ना हम उतना रेगुलरली नहीं देखते, अगर कुछ देर के बाद देखेंगे तो हमको रेसिडुअल क्लोरीन हमको दिखेंगे, उसके बाद कांटेक्ट पीरियड हमको कैसा मेजर होना है कि 0.5 mg पर लीटर फॉर 1 आवर अगर रह गया तो ये रेसिडुअल क्लोरीन से ज्यादा हो गया, ब्रेक पॉइंट से ज्यादा हो गया, दैट वन इज द कांटेक्ट पीरियड, ठीक है बेटा। सो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोरिनेशन वी हैव रेड। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ क्लोरिनेशन। हम देखो कैसे पढ़ते आ रहे, प्लीज बेटा एक बार आप देखते रहना कि हम क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं कि पहले से स्टार्ट करके यहाँ पर, फिर उसका एडवांटेजेस पढ़े हैं, एडवांटेजेस के बाद उसका मैकेनिज्म क्या है, हम एक बार ऐड कर रहे हैं क्लोरीन, उसका एडवांटेजेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स, क्यों भी ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लोरिनेशन, कैसा ऐड करना, प्लीज रिमेम्बर दिस पॉइंट्स। एक बार आप साइड में हिंदी में भी लिखो, क्यों कैसा क्या ऐसा क्या, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्लोरिनेशन ऐड कर रहे हैं, मगर आपका बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, पहला वो चेक करना है, उसके बाद मैकेनिज्म एक्शन उसमें क्या हो रहा है, एडवांस बेनिफिट्स क्या है उसमें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स क्या है, क्यों ऐड कर रहे हैं, किस लिए ऐड कर रहे हैं, उसके बाद कैसे ऐड करना, मेथड ऑफ क्लोरिनेशन, क्यों कैसे ऐड करना, क्यों ऐड करना, उसके हमको क्लैरिटी है। अब ऐड करना है, कैसे ऐड करना, यूजुअली डन विथ क्लोरीन गैस। सो दिस इज द इक्विपमेंट विथ पीटरसन्स क्लोरोनम इक्विपमेंट जो है उसके साथ हम क्लोरीन गैस से हम यूज करते हैं, समटाइम्स विथ क्लोरामाइन एंड आल्सो परक्लोरन। Actually, this chlorination is done with the chlorine gas with the equipment and also sometimes with the chloramine and perchloran. With this method also we can use. Chlorine gas is the best, cheap, quick in action and efficient and also easy to use. So ये 3 मेथड से हम क्लोरिनेशन कर सकते हैं, मगर क्लोरीन गैस इज द बेस्ट है, चीप है, क्विक इन एक्शन है, जल्दी काम हो जाएगा, एफिशिएंट है बोल तो इफेक्टिव है, अच्छी तरह से काम करेगा एंड इजी टू यूज। हम क्लोरीन गैस जल्दी इक्विपमेंट से यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके डन। नेक्स्ट स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हम लार्ज स्केल में क्या क्या करें बेटा, एक बार हमारे साथ बोलो, पहले प्रोटेक्शन करें, उसके बाद स्टोर करें, उसके बाद कोआगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन करें, हम भी नहीं देख रहे क्या था पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट क्या है, फिल्ट्रेशन करें, उसके बाद क्या है ये क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन मेथड इज नथिंग बट डिसइंफेक्शन। इस डिसइंफेक्शन की इस क्लोरिनेशन में उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, हम कैसा यूज करें। सो दिस आर ऑल कम्स अंडर लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, समझ में आ गया लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ, हाँ बेटा कुछ डाउट है? नो मैम कुछ नहीं। ओके वेरी गुड।
Next is coming to the point of small scale purification of water. So it is for 3 steps. That one is 5 steps. Please remember that one is 5 steps and this one is 3 steps. ठीक है, देखो अब स्मॉल स्केल में क्या है, बॉइलिंग. बॉइलिंग हम लार्ज स्केल में कर सकते हैं क्या? नहीं, तालाब और रिवर्स में जाके हम बॉइल नहीं कर सकते. बोलते हैं स्मॉल स्केल में बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स बैक्टीरिया, स्पोर्स, यीस्ट एंड ओवा. इट रिमूव्स हार्डनेस बट टेस्ट इज ऑल्टर्ड. ठीक है, बॉइलिंग करके हम प्यूरिफाई कर सकते हैं. इट कैन किल बैक्टीरिया, स्पोर्स, यीस्ट एंड ओवा, जो भी प्रेजेंट है उसमें वो सब मर जाएगा. इट कैन रिमूव हार्डनेस बट टेस्ट इज ऑल्टर्ड. बोले तो बट टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज केमिकल डिसइंफेक्शन. इट इज डन विथ ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, इट इज डन विथ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरामाइन, क्लोरीन टैबलेट्स, आयोडीन or potassium permanganate. So these are some ingredients we can use for the chemical disinfection. For large scale, we use only chlorination process. Disinfection में only chlorination. But in this small scale, we can use bleaching powder, chloramine, chlorine tablets, iodine or potassium permanganate. By adding this, we can purify the water. Next is filtration. 3 types of domestic filters are there. Posture chambered filter है, Berkfield filters है, and Katydin filter. These 3 filters they will use in a filtration method. ठीक है बेटा. So in this small scale purification में only 3 steps है: boiling, chemical disinfection, filtration. It is very easy to remember. ठीक है. Next is what is the mechanism of action with this? ठीक है, हम फिल्टर कर रहे हैं इसमें यहाँ पर. तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? इन कैटेडिन फिल्टर द सिल्वर कोटिंग किल्स द बैक्टीरिया. बोल तो उसका जो है वो आप बुक में इसके बारे में जाएंगे तो थोड़ा बहुत है उसमें, ये फिल्ट्रेशन मेथड्स, टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड्स कैसा कैसा है, उसमें प्रोसेस भी है, वहां पर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे. तो सिल्वर कोटिंग उसमें अंदर में रहता है, कैटेडिन फिल्टर के अंदर सिल्वर कोटिंग रहता है. इट कैन किल द बैक्टीरिया by algodynamic action. In the other 2 types, bacteria removed by mechanical filtration. In this Katydin filter में जो है सिल्वर कोटिंग रहता है बेटा, वो सिल्वर कोटिंग में सिल्वर कोटिंग से बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं बाय ओलिगोडायनेमिक एक्शन के साथ वो किल करेंगे. इन अदर 2 मेथड्स जो भी है, देखो पास्चर चैम्बरलैंड फिल्टर है, बर्कफील्ड फिल्टर जो है, ये 2 फिल्टर्स में जो है बैक्टीरिया कैन बी रिमूव्ड बाय मैकेनिकल फिल्ट्रेशन. मैकेनिकल फिल्ट्रेशन तो बस कुछ सभी फिल्ट्रेशन मेथड के साथ वो फिल्टर करके हम निकाल दे सकते. ठीक है बेटा. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड्स? द फिल्टर कैंडल्स में बी क्लॉग्ड विथ इंप्योरिटीज एंड बैक्टीरिया. आप वाटर फिल्टर देख सकते हैं घर में, है ना बेटा. वाटर फिल्टर अपने घर में रहता है, वो कैंडल्स रहते हैं उसमें. वो कैंडल्स जो है, जो भी मड उसमें पकड़ देता है वो क्लॉग हो जाता है. क्लॉग बोले तो मड पूरा उसमें जमा हो जाती है, जमा हो जाती है, वैसा वो प्रॉब्लम हो जाती है. इन दिस आल्सो द फिल्टर कैंडल्स में बी क्लॉग्ड विथ इंप्योरिटीज एंड बैक्टीरिया. अगर हम फिल्टर्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्लीज आप लोग जो है घर का फिल्टर्स जो है स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन में आप अपना वाटर फिल्टर को याद कर लीजिए प्लीज. ठीक है, तो वो याद रहेंगे तो आप एग्जाम में सिंपली कर सकते हैं. आप सोचो कि घर में हम कर रहे हैं स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन, हमारे घर में कर रहे हैं. पहले क्या करेंगे, बॉईल करके वाटर को रख देंगे, उसके बाद उसमें केमिकल डिसइंफेक्शन को जो भी हम ब्लीचिंग पाउडर डाले बोल के सोचेंगे, उसके बाद उसको भी फिल्टर करना है. उसको क्या करेंगे, हम जाके वाटर फिल्टर में डाल देंगे. वाटर फिल्टर में डालेंगे तो क्या होता है, तो ये सिल्वर कोटिंग इसको किल कर देते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप ऐसा याद रख सकते हैं. उसके बाद डिसएडवांटेजेस में ये लिख सकते हैं कि वो कैंडल जो है क्लॉग हो जाएगा विथ impurities and bacteria. Water it may be present in the water, it will be clogged on that candles. So they must be cleaned with a brush every week. हमारे घर में भी जब कभी पानी भरते रहते हैं, उसको कैंडल्स को धो के हम पानी लेते हैं. ठीक है बेटा, याद है आपको, पता है ये वाटर फिल्टर्स घर में रहते हैं, ये पता है आपको. सो अगर वो आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद यहाँ तक आपका
स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज आल्सो ओवर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन ऑफ वेल्स। वेल्स बोले तो जो कुएं अपने घर के पास रहते हैं ना, वो हम वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, उसको कैसे डिसइंफेक्ट करें, क्योंकि ना वो पानी को भी हमको प्यूरिफाई करके यूज करना है। इफेक्टिव एंड चीपेस्ट मेथड इज बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर। वो वेल्स में क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल के हम उसको डिसइंफेक्ट करके हम वो वाटर को हम यूज करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स हियर वंस अगेन 4 स्टेप्स। कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिल, क्योंकि ना कितना ब्लीचिंग पाउडर ऐड करना है, इसके लिए हमको उसमें कितना वाटर है वो हमको पहले कैलकुलेट करना है। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कितना डालना है ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर, कितना डिजोल्व हो सकती है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ क्लोरीन सॉल्यूशन इनटू द वेल, हम इसमें डिलीवरी ऑफ, इसमें फिर से क्लोरीन सॉल्यूशन को उसमें डिलीवरी करके भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सो डिसइंफेक्शन ऑफ वेल्स बेटा, purification of small scale purification of in small scale different है, disinfection of wells different है। so इसमें 4 टाइप्स है। प्लीज आपको याद रखना, वेल्स के बारे में सोचना है तो उसमें वाटर कितना है पहले सोच लेना है, उसके बाद उसमें कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना है, कितना उसमें डिजोल्व हो सकती है अपना ब्लीचिंग पाउडर, वो भी कैलकुलेट करना है। एंड ऑल्सो वी कैन डिलीवर क्लोरीन सोल्यूशन टू द वेल to purify that water. For this, what are the procedures? How to do that one? So in this procedure, 2 grams of bleaching powder is dissolved in the black cup and made up with water up to the mark inside stock solution. मतलब उसका कैलकुलेशन करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एक मैकेनिकली ये कंटेनर लिए है, उसके हिसाब से वो लोग बता रहे कि 2 ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर डिजोल्व एक ब्लैक कप में डाल के डिजोल्व करके उसको वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप करके ले रहे। उसके बाद all 6 white cups filled with water to be tested just 1 centimeter below। बोलते एक व्हाइट कप्स, 6 व्हाइट कप्स लेके उसको रख देना है टेस्ट करने के लिए। विथ पिपेट स्टॉक सोल्यूशन इज एडेड टू ऑल व्हाइट कप्स। बोलते ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो ऐड करे हैं वो वाटर को हम कप्स में डाल के टेस्ट करना है। आफ्टर 30 मिनट्स 3 ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च आयोडीन इंडिकेटर इज एडेड। उसके बाद उसमें 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इंडिकेटर उसमें डालना है। द फर्स्ट कप इन विच डीजल डिस्टिंक्ट ब्लू कलर डेवलप इज नोटिस्ड। ठीक है, हम समझाएंगे आपको इसमें प्रोसीजर, क्योंकि ना ये कैसा चेक करना है, एक्चुअली हम अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं बोल के कैसा टेस्ट करना है। इसमें क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डिजोल्व करके एक ब्लैक कप में डिजोल्व करके वाटर से मेकअप जितना हमको चाहिए उतना मेकअप करके स्टॉक सॉल्यूशन बना के रख देना। एक 6 व्हाइट कप्स वाटर के साथ लेके उसको रख देना। वो 6 व्हाइट कप्स में ही हमको टेस्ट करना है। ठीक है बेटा, 6 व्हाइट कप्स में टेस्ट करने के लिए रखना है। ब्लैक कप में जो है स्टॉक सॉल्यूशन है, ये याद रखना आपको। ब्लीचिंग पाउडर का स्टॉक सॉल्यूशन ब्लैक कप में है, 6 व्हाइट कप्स आर फॉर द टेस्ट। ठीक है, इसमें अब क्या करना, पिपेट लेके जो ब्लैक कप में जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो व्हाइट कप्स में थोड़ा थोड़ा डाल देना। ठीक है, जो स्टॉक सॉल्यूशन जो है व्हाइट कप्स में 6 व्हाइट कप्स में थोड़ा थोड़ा डाल के रख देना। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स बोले तो वो ब्लीचिंग पाउडर वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स 3 ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च आयोडीन इंडिकेटर, अपने पास इंडिकेटर्स रहते बेटे लैब्स में, 3 ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च आयोडीन इंडिकेटर अपने पास रहते, वो 3 ड्रॉप्स एक एक कप में 6 कप्स में डालते जाना है। तब क्या हो जाएगा, अगर टेस्ट फेल हो गया, द फर्स्ट कप इन विच डिस्टिंक्ट ब्लू कलर डेवलप्ड इज नोटिस्ड, सो दैट वाज फेल्ड वन। ठीक है, ऐसा हम चेक कर सकते हैं। कैसा ये हम डिसइंफेक्शन चेक करना, ये हम ऐसा चेक कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा, दिस इज द वन प्रोसीजर हाउ टू चेक द डिसइंफेक्शन लेवल। सो व्हाट इज द कॉन्टैक्ट पीरियड, 1 hour is necessary before water is drawn from the well। मतलब वो कॉन्टैक्ट पीरियड कितना रहना है, 1 hour हमारे पास रहना है बिफोर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल। हम वाटर वहां से लेने से पहले 1 hour हम स्टॉक सोल्यूशन
banaki. And this is the contact period. Understand, beta? So up to this, we have completed about water pollution and how to prevent that water pollution. This one is the water pollution is over today.